Dear students, today we are going to read the lesson Birth, written by A.J. Cronin. This chapter is an extract from A.J. Cronin's novel The Citadel, written in 1937. It describes how a young doctor revives a child that is thrown away as stillborn. Joe Morgan and his wife are a middle-aged couple. They have been married for 20 years but haven't any child so far. Now Mrs. Morgan is accepting her first child. Both her husband and her mother are feeling very nervous because the delivery of the child is going to be before time. A young doctor named Andrew is called in. The doctor has to put in hard labor in the delivery of the child. When the child is born, it seems to be stillborn. This shock could be too much for the Morgans to bear. While the doctor is attending to the mother, the nurse places the baby under the bed among dirty newspapers. After assuring himself that the mother is safe, the doctor looks for the baby, finding it under the bed. He at once pulls it out. It was a boy, perfectly formed. The body was warm but was not breathing. At once the doctor sets to revive the child's breath. After half an hour's terrible effort, he is at last successful. He thanks God and hands the child to the nurse. While going in the street, he keeps thinking, I have done something. Oh, God, I have done something real at last. The whole description of the child's birth is full of deep pathos. यह लेख A.J. क्रॉनिन के उपन्यास द सिटाडेल रिटन इन 1937 का एक अंश है. इसमें यह बताया गया है कि किस तरह एक युवा डॉक्टर एक बच्चे को पुनर्जीवित करता है जिसे मृतजात मानकर फेंक दिया गया है. जो मॉर्गन तथा उसकी पत्नी एक अधेड़ आयु के पति पत्नी हैं. उनका विवाह हुए 20 वर्ष हो गए हैं, किंतु अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ है. अब श्रीमती मॉर्गन का पहला बच्चा होने वाला है. उसका पति और उसकी मां दोनों ही बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि बच्चे का जन्म समय से पूर्व होने वाला है. एंड्रयू नाम के युवा डॉक्टर को बुलाया जाता है. डॉक्टर को बच्चे के जन्म में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. जब बच्चे का जन्म होता है तो वह मृतजात प्रतीत होता है. यह सदमा इतना बड़ा हो सकता था कि मॉर्गन परिवार के लिए सहन करना असंभव हो जाता. About the author, Archibald Joseph Cronin was a Scottish physician and novelist. He was born in Cardross, Dunbartonshire, Scotland in 1896. He was a Carnegie Scholarship to study medicine at the University of Glasgow. Cronin went on to earn additional qualifications including a diploma in public health 1923 and membership of the Royal College of Physicians 1924. His best known novel The Citadel, written in 1937, tells of a Scottish doctor in a Welsh mining village who later shoots up the career ladder in London. This chapter is an excerpt from this book. Theme of the lesson. This is a moving story of a young doctor's battle with death. With supreme effort, he brought back a newborn baby and its mother from the jaws of death to warm, glowing life. The lesson also focuses on the importance of believing in yourself and the satisfaction gained from accomplishing something in life. The lesson also highlights the difference between theoretical knowledge and practice, which in this case made the difference between life and death. The doctor's all other complaints in life fade away as he is focused on his task. This is the level of focus needed from a professional and is something to aspire in life. This is the theme of the lesson. Characters. Dr. Andrew Manson, newly qualified, takes a job in a small mining town. The midwife, nurse, an experienced nurse to help in the birth of the child. The midwife and Andrew are contrasting personalities. She feels hopeless, resigned, helpless, fearful, and untrained. Joe Morgan, a well-built person in 40s,
lives in a small west town of Burnley, works as a driller at the mines. He has been married for 20 years but has not got any child so far. Mrs. Susan Morgan, wife of Joe Morgan, is expecting her first child. Both her husband and her mother are feeling very nervous because the delivery of the child is going to be before time. Mrs. Morgan's mother, a tall, grey haired woman of nearly 70. These are the characters in this lesson. Please understand. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringower, he found Joe Morgan waiting for him. अभी मध्य रात्रि थी when Andrew reached, जब एंड्रयू ब्रिंगोवर पहुंचा, वो पाया कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा था, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी, उसकी दवाखाने के बगल में ही, सामने ही, वो यहाँ वहाँ घूमता हुआ उसका इंतजार कर रहा था. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, और उसको देखते ही उस माइनर के चेहरे पर सांत्वना के भाव दिखे कि चलो डॉक्टर आ गया. ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. अरे डॉक्टर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, आप आ गए. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर. मैं 1 घंटे से यहाँ चहलकदमी कर रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ. द मिसेस वान से बिफोर टाइम टू, घर पे आपकी आवश्यकता है, बच्चे की डिलीवरी होने वाली है और वो भी समय से पूर्व. एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, और एंड्रयू याद करता है, अपनी यादों से निकलता है मॉर्गन टू वेट, उसे इंतजार करने के लिए कहता है. ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वो घर के अंदर अपने बैग को लेने के लिए चला जाता है. टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेन टेरेस, और दोनों एक साथ ब्लेन टेरेस के लिए निकल पड़ते. द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, रात्रि की हवा बहुत ठंडी और रहस्य से भरी हुई थी. यूजुअली सो पर्सपेक्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. एंड्रयू अब नीरस सा प्रतीत कर रहा था और तमाम विचार उसके मस्तिष्क में चल रहे थे. He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Burnley. और ये मध्य रात की जो कॉल थी और वो जा रहा था, वो अनयूजुअल थी और उसे नहीं लग रहा था कि इससे उसके भविष्य पर इसका कोई असर पड़ेगा, उसकी कम उम्मीद थी. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. दोनों व्यक्ति बहुत शांत भाव से चलते हुए वहां पहुंचे, दरवाजा नंबर 12 पे. Then Joe drew up short. I will not come in, he said. और जो ने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊंगा. And his voice showed sign of strain, और उसकी आवाज से लग रहा था जो तनाव में था. But man, I know you will do well for us. लेकिन मुझे पता है कि आप आ गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है. Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. एक सकरी से सीढ़ी के से होते हुए एक छोटे बेडरूम में गया, जो कि छोटा था लेकिन साफ सुथरा था. बहुत ही भद्दे ढंग से उसको सजाया गया था. इट लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और एक तेल की डिबरी जल रही थी. Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient. और वहाँ मिसेज मॉर्गन्स मदर, माँ जो एक लंबी सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी महिला, लगभग उनकी उम्र 70 साल की थी. एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, और वो नर्स, मोटी नर्स, दोनों इंतजार कर रहे. बिसाइड द पेशेंट, मरीज के बगल में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे. वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और एंड्रयू के एक्सप्रेशन को देख रहे थे जब वो कमरे के अंदर आए. लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर, मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ. सेड द फार्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, मॉर्गन की मदर ने कहा कुछ क्षणों के बाद. एंड्रयू स्माइल्ड फ्रेंकली, एंड्रयू जो है
मुस्कुराए। He saw that the old woman, wise in experience, उसने देखा कि बूढ़ी महिला जो अपने अनुभवों से बहुत ही बुद्धिमान थी, काफी अनुभव था उनको। रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट, उन्हें एहसास था कि अभी इंतजार था। सी वॉज, अभी समय था बच्चे की डिलीवरी में। सी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, और उन्हें इस बात का भय था कि अभी समय तो हुआ नहीं था और डॉक्टर कहीं ये न कह दे कि अभी समय है, मैं जा रहा हूं, मैं बाद में लौटूंगा। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, डॉक्टर ने उनके तनाव भरे विचारों पे उन्होंने कहा कि मदर, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच सी गेव हिम, किचन के अंदर गया और वहां पे चाय पिया जो 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 मॉर्गन की मदर ने दिया। Overwrought as he was, he knew he would not snatch even an hour's sleep if he went home. और वो जानता था कि अगर वो घर गया तो 1 घंटे की भी नींद वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि इतना भी ज्यादा समय नहीं बचा था डिलीवरी में। He knew too that the case here would demand all his attention. वो जानता था कि यहाँ इस मामले में उसका पूरा ध्यान की आवश्यकता थी, उसे उसकी ध्यान की बहुत जरूरत थी मरीज को। A queer lethargy of spirit came upon him, और वो वहीं बैठ गया थोड़ी आलस से भर के। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और उसने निर्णय लिया कि वो यहीं रहेगा जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए, बच्चे की डिलीवरी न हो जाए। एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन, और 1 घंटे के बाद फिर से वो सीढ़ियों के ऊपर गया। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और अब तक जो भी प्रोग्रेस हुआ था उसको उसने ध्यान दिया, देखा। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर से नीचे आया। सेट बाय द किचन फायर, और आग, किचन में जल रही आग के पास बैठ गया। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रस्टल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो आग जल रही थी उसकी आवाज और घड़ी की टिक टॉक की आवाज आ रही थी। नो, देयर वॉज अनदर साउंड, एक दूसरी आवाज भी थी, द बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर से वो सुन सकता था मॉर्गन के कदमों की आवाज जो बाहर चहलकदमी कर रहा था और चिंता लिए हुए, उत्सुकता लिए हुए बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ टहल रहा था। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, बूढ़ी महिला उसके विपरीत अपने काले ड्रेस में बैठी हुई थी। क्वाइट मोशनलेस, एकदम शांत स्थिर भाव में, गतिहीन अवस्था में। हर आइज स्ट्रेंजली एलिव एंड वाइज, और उसकी आंखों में अजीब सा जीवंतता, एक अनुभव और बुद्धिमानी झलक रही थी। प्रूविंग नेवर लिविंग हिज फेस, और उसको देख रहा था, उसकी चेहरे की तरफ से वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। द मॉर्गन हाउस, टिल नाउ all of you have learned. Dr. Andrew, upon reaching his house, saw Joe Morgan pacing up and down the steps. Joe was a heavily built driller in the local mines. Joe told the doctor that his wife is expecting their child before time and they need to get there fast. Andrew collected his bag and they left for Joe's house. They reached Joe's house, where Joe asked the doctor to go on inside and he would wait outside. Inside, Mrs. Morgan's mother and a midwife waited beside the patient. Mrs. Morgan's mother offered the doctor tea to make sure that he doesn't leave and come back later. The doctor assured her that he was not going anywhere and drank the tea. He went to check on Mrs. Morgan again, noted the progress, and came down once more. The Morgan house. His thoughts were heavy muddled. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. वो अपने विचारों में खोया हुआ था, वो पूरी घटनाक्रम को याद कर रहा था। He thought of Bramwell foolishly devoted to a woman, और उसने सोचा ब्रैमवेल के बारे में जो बड़ी मूर्खतापूर्ण ढंग से एक ऐसी महिला के प्रति समर्पित था, who deceived him sordidly, जिसने उसे धोखा दिया था। Of Edward Page, bound to the service Bloodwen of Denny, living unhappily apart from his wife, और जो कि अपनी पत्नी के प्रति डिवोटेड था और वो अपने उससे अलग अनहैप्पी ढंग से रह रहा था। His reason told him that all these marriages were dismal failures, और ये सब अनुभवों से उसे पता चला था कि ये जो भी विवाह मैरिजेज हैं वो असफल रही थी। It was a
conclusion which in his present state made him wince, और इसी से उस निष्कर्ष पे पहुंचा था जो आज उसकी वर्तमान की मस्तिष्क की स्थिति थी, वो इसी बात को मान रहा था, असफलता को, विवाहिक जीवन की असफलता को लेकर। ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट्स, उसने सोचा कि विवाह को एक सामान्य आइडियल स्टेट में, एक स्थिति विवाह जैसे होता है, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम, लेकिन वो अपने सामने क्रिस्टीन की जो इमेज आ रही थी उसको लेकर के वो विवाह को असफल मान रहा था। और हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी आंखों में चमक थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और कोई निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंचा। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डॉप्टिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, और उसके मस्तिष्क में जो संदेह पनपा था और उसके हृदय में जो व्यथा चल रही थी, वो दुविधा वाली स्थिति में पड़ा हुआ था। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, उसने अपने चिन को चेस्ट की तरफ झुकने दिया। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को पसार लिया। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और आग की तरफ एकटक देखने लगा। He remained like this so long, और ऐसी स्थिति में लंबे स्थिति तक रहा। And his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. और वो इसी अवस्था में रह करके क्रिस्टीन के विचारों में ही खोया हुआ था, इतना खो गया था, और आग की तरफ लगातार घूरता रह रहा था। और वो चौंक गया जब बूढ़ी महिला उसके विपरीत आके खड़ी हुई अचानक से, और उसे संबोधित किया। हर मेडिटेशन हैड परसूड ए डिफरेंट कोर्स, और अपने विचारों से निकल के बाहर आया। सुजन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी, कहा कि सुजन ने कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान होगा। सी इज आफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, डॉक्टर बा, और उसे इस बच्चे से ही पूरी उम्मीद है। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट ए सडन थॉट, और उसकी इस विचार के आते ही बच्चे के विचार से उसकी आंखों में चमक आ गई। सी एडेड इन ए लो टोन, और उसने मध्यम आवाज में कहा, ए वी ऑल आर, हम लोगों को, सभी लोगों को उम्मीद है, फैंसी, मैं ऐसा सोचती हूँ, सब कुछ ठीक होगा। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विथ एन एफर्ट, उसने फिर से अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने आप को उस वर्तमान स्थिति में ले आया। इट वोंट डू एनी हार्म टू एनेस्थेटिक, उसने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ही सेड काइंडली, बहुत ही दयापूर्ण भाव से उसने कहा, दे विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक होगा। हियर द नर्स वॉइस वाज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और यहाँ पर नर्स की आवाज आती है जो ऊपर से बुला रही है। एंड्रू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, एंड्रू ने घड़ी की तरफ देखा, विच नाउ शोड 3:30, 3:30 बज रहे थे। He rose and went up to the bedroom, वो उठा और बेडरूम की तरफ गया। He perceived that he might now begin his work, और उसे लगा कि उसे अपना कार्य शुरू करना चाहिए। An hour elapsed, 1 घंटा निकल गया। It was a long hard struggle, बहुत ही लंबा और अपने विचारों में खो करके 1 घंटा का समय निकल गया। Then at the first streak of dawn straight past the broken edges of the blind, the child was born lifeless, और उसकी इतनी मेहनत के बाद सुबह भोर में बच्चे का जन्म हुआ, लाइफलेस, जो मृत प्राय था। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, ए सीवर ऑफ ऑरर पास्ड ओवर एंड्रू आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने देखा उस तरफ और वो कांप गया, एक डर बैठ गया। उसने परिवार को प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक होगा। हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्शंस, अपने विचारों से उसके चेहरे पर तनाव आया। चिल्ड सडनली, ही हेजिटेटेड, टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिएट द चाइल्ड, और उसे विचार आया कि उस बच्चे को जान लाई जाए। एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर, और उसकी जो जिम्मेदारी थी माँ के प्रति, वाज हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट, जो स्वयं ही बड़ी निराशापूर्ण स्थिति में थी। द डायलेमा वाज सो अर्जेंट, ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, और दुविधा इतनी त्वरित वहां पर ये उपजी थी कि उसे वो तुरंत सॉल्व नहीं कर पाया। ब्लाइंडली, instinctively he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, उसने बच्चे को नर्स को दिया और उसने अपना पूरा ध्यान सुजन मॉर्गन की तरफ लगाया। Who now lay collapsed
जो बेहोश अवस्था में पड़ी थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी नाड़ी भी नहीं चल रही थी लगभग, एंड नॉट एट आउट ऑफ द इथर अपॉन हर साइड, और वो रिस्क में थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, उसकी जल्दी हताशा से भरी हुई थी। ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत लगा करके वो लग गया। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश ए ग्लास एम्पुल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, उसने इंजेक्शन की शीशी से दवा को निकाला, इंजेक्ट किया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और उसको सिरिंज में लेकर के एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और उस वुमेन को, उस महिला को लगाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, कुछ कोशिशों के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसके हृदय में कुछ ताकत आई। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, और उसने देखा कि अब वो उसको सुरक्षित ढंग से छोड़ सकता था। ही swung राउंड, वहां से घुमा इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम ब्रो, स्लीव शर्ट पहने हुए उसके बाल नीचे गिर रहे थे। उसने अपनी महिला से ध्यान अलग हटाया। द लाइफलेस चाइल्ड, द डॉक्टर was engrossed in his thoughts, even the events at Cardiff station earlier. It made him consider that all marriages were failures when he wished to believe marriage to be an idyllic state. The old woman told him that Susan wanted them not to give her the chloroform if it would harm the baby. Dr. Andrew assured her that the anesthetic won't cause any harm. The nurse called for them, and Dr. Andrew went up to do his work, but the child was born lifeless. The doctor was in dilemma whether to help the child or to focus his attention on the mother Susan, who was almost pulseless. He injected the mother with the medicine which worked, and the mother's heart strengthened. The lifeless child. Where is the child? The midwife made a frightened gesture. बच्चा कहाँ है? मिडवाइफ नर्स जो है बहुत भयभीत भाव से वहां खड़ी थी। सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, बच्चे को उसने बिस्तर के नीचे रख दिया था, बेड के नीचे। इन ए फ्लैश एंड्रयू बेंट डाउन, एंड्रयू जल्दी शीघ्रता से झुका। फिशिंग अमॉन्ग्स्ट द सॉल्डन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को बाहर निकाला। ए बॉय परफेक्टली फॉर्म, पूरी तरह से एक बच्चा। द लिम वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, पूरा शरीर उसका सफेद कोमल। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर। द हेड lolled on to thin neck, the limbs seemed boneless, still kneeling, अभी भी झुका हुआ। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे की तरफ घूर के देखा भी थे। हैगर्ड फ्राउन, उसकी त्योरी धमी चढ़ी हुई तनाव में। द वाइटनेस meant only one thing, और सफेदी का केवल एक मतलब था, एस्फेक्सिया पैलिडा टू, एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, और वो टेंस हो गया। रेस्ड बैक टू ए case he once had seen in the Smartian, to the treatment that had been used instantly. He was on his feet. Get me hot water and cold water. खड़ा हो गया, कहा मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी दिया जाए। He threw out to the nurse. उसने कहा ये पानी लिया, गर्म पानी और ठंडा पानी लिया जाए। And basins too, और बेसिन भी लाए, बर्तन भी। Quick, quick, जल्दी करो। But doctor, she faltered her eyes. लेकिन डॉक्टर, उसकी आंखें फैली हुई। On the pallid body of the child, बच्चे को देख घूरे जा रही थी। क्विक, जल्दी करो। He shouted, snatching a blanket, एक ब्लैंकेट झपटते हुए वो चिल्लाया। He laid the child upon it, उसने ब्लैंकेट पर बच्चे को लिटाया। And began the special method of respiration, उसको सांस लेने की खास जो तरीका था उसका स्टार्ट कर दिया। The basin से राइट बर्तन आ गए। The big iron kettle, एक बड़ी सी लोहे की केटल। फ्रेंटिकली स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू द वन बेसिन, उसने शीघ्रता में एक बड़े बर्तन में ठंडे पानी को डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट, और दूसरे में उसने गर्म पानी मिलाया। एज हिज हैंड कुड बियर, जितना उसके हाथ बर्दाश्त कर सकते हों। देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, और वो जैसे किसी जगलर की तरह से बच्चों को दोनों बर्तनों में डाल रहा था। नाउ प्लगिंग इनटू द आईसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, ठंडे पानी में और फिर गर्म पानी में। 15 मिनट्स पास, 15 मिनट गुजर गए।
Sweat was now running into Andrew's eyes. पसीना निकल रहा था, blinding him, और पसीने से उसकी आंखों से साफ दिख भी नहीं रहा था. One of his sleeves hung down, dripping, और एक उसके बाजू शर्ट की जो है पानी में गिर के भीग रही थी. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. और वो हाँफ रहा था, लेकिन बच्चे के शरीर से कोई भी सांस लेने की आवाज नहीं आई. वैसे ही शरीर ढीला पड़ा हुआ. ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, और उन्हें हताश, निराश, एक पराजित वाला भाव उसके अंदर आया. ए रेजिंग होपलेसनेस, निराशा से परिपूर्ण. ही फेल्ट द मिडवाइफ वाचिंग हिम इन स्टार्क कंसंट्रेशन. उसने महसूस किया कि मिडवाइफ जो है उसे ही देख रही थी. वेल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन, जो दीवार से लगी हुई खड़ी थी और वहीं पे वो खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी. हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसके हाथ अपने गर्दन पर पकड़े हुए. अटरिंग नो साउंड, कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी. हर आईज बर्निंग अपॉन हिम, और उसकी आंखें केवल उसकी तरफ ही देख रही थी. वॉज द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला. ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, और उसे याद आया कि कितनी उस महिला अपने पोते के बारे में चाहत उसकी थी. एज ग्रेट एज ही हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, उतनी ही बड़ी जितना वो चाह रही थी कि उसकी बेटी बच्चे की चाहत में थी, उसकी डिजायर थी उसके यहाँ बच्चा हो. ऑल डैश्ड अवे नाउ, सब पर पानी फिर गया था. फ्यूटाइल, सब बेकार. बियॉन्ड रेमेडी, कोई उपाय नहीं था. द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मेस, फर्श पर पूरा यहाँ वहाँ सामान बिखरा हुआ. स्टम्बलिंग ओवर ए सोपिंग टॉवल, एक टॉवल लिए हुए. एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स. एंड्रू ने बच्चे को, जो एकदम गीला और स्लिपरी हो गया था, उसको टॉवल पे रखा. लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कोई एक सफेद सी मछली हो, अजीब सी. और मर्सी से डॉक्टर, ईश्वर की मर्जी, डॉक्टर ऐसी ही है. विम्पर्ड द मिडवाइफ, मिडवाइफ ने कहा. इट इज स्टिल बॉर्न, अभी भी यह जन्मा है. एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. बीटन डिस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे की मेहनत उसकी बेकार जा रही थी. स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, उसने फिर से एक कोशिश, अंतिम कोशिश करने की सोची. रबिंग द चाइल्ड विथ अ रफ टॉवल, बच्चे को टॉवल से रगड़ा. क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड्स, और उसके चेस्ट पर उसने अपने दोनों हाथों से दबाव और छोड़ना, प्रेस किया. ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू द लिम बॉडी, कोशिश की कि उसके सांस चलने लगे. एंड देन एज बाई ए मिरेकल ऑफ इट, जैसे कोई अजूबा सा हुआ. द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, उस छोटे से उसकी सीने पर, इस पर उसने अपने हाथों से प्रेस कर रहा था. गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, एक झटका सा आया. एंड फिर दूसरा. एंड यू टर्न गिडी, द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, और डॉक्टर को सेंस हुआ कि जीवन आ रहा था. उसकी उंगलियों के नीचे एहसास हो रहा था कि हार्ट जैसे स्टार्ट हो रहा था. ऑल दैट अनवेलिंग स्टेविंग वाज सो एक्सक्विजिट, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट. He redoubled his efforts feverishly, और उसने अपनी कोशिशों को फिर से डबल कर दिया. The child was gasping now, बच्चा अब सांस ले रहा था. डीपर एंड डीपर, गहरी गहरी सांसें ले रहा था. A bubble of mucus come from one teeny nostril, और उसकी एक छोटी सी नाक से बबल भी आई. A joyful iridescent bubble. The limbs were no longer boneless, और अब उसके लिम्स ऐसे नहीं लग रहे थे जिसमें हड्डी ना हो. The head no longer lay back spinelessly. The blank skin was slowly turning pink. Then exquisitely came the child's cry. Resuscitating the child. Dr. Andrew asked for the child whom the midwife had kept beneath the bed. He frantically pulled the child out. The doctor suspected that it was a case of asphyxia pallida, and he remembered a similar case and the treatment used. He asked the nurse to get him some hot and cold water, who initially was hesitant as the child was lifeless, but Dr. Andrew shut her down.
He wrapped the child in a blanket and started dipping the child into icy water and then into hot water for 15 minutes. But that didn't seem to be working. The midwives and the grandmother were both looking intently. Dr. Andrew, in the last effort, started pressing the child's chest to get breath into him, and then by a miracle, the child started breathing, and Andrew redoubled his efforts with hope, and blood started going to the child's arms and head, and then he gave out a cry. The child was finally alive. Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically, it is come. Oh God, नर्स जो है रोने लगी, इट्स कम एलिव, अरे ये तो जीवित हो गया, बच्चे में जान आ गई. एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने उसे बच्चे को समर्पित किया, उसे दिया. ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, उसने अपने आप को कमजोर थका हुआ महसूस किया. अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग लिटर ब्लैंकेट्स, टॉवेल्स, बेसिन, स्वाइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, और कमरे में सब ब्लैंकेट, टॉवेल, बेसिन सब पड़ा हुआ था. द hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, they were knocked over the kettle on its side in a puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. और बेड पर मदर अभी भी एनेस्थेटिया के असर में थी. द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो बूढ़ी महिला अभी भी दीवार का सपोर्ट लेकर के खड़ी थी. बट हर हैंड्स वेर टुगेदर, उसके हाथ जुड़े हुए थे, गॉड से जैसे प्रेज कर रही थी. हर लिप्स मूव्ड विदाउट साइन, और उसके होंठ जो हैं बिना आवाज के हिले. सी वाज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी. मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, उसने एंड्रयू ने अपनी स्लीव चढ़ाई, अपने जैकेट को पहना. आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा. ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के नीचे गया. थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी थ्री, किचन से होते हुए. हिज लिप्स वे ड्राई, उसके होंठ सूखे हुए थे. एट द स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और वहां जाकर उसने एक पानी पिया. ही रीच्ड फॉर हिज हैट, उसने अपनी कैप उठाई, एंड कोट उठाया. आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट, और बाहर उसने जो को खड़े हुए उसका इंतजार करते हुए पाया. विद टेंस, बहुत ही टेंशन, चिंतित भाव में, और बहुत ही उम्मीद भरी चेहरे से, एक्सपेक्टेंट फेस. ऑल राइट जो, ही सेड, जो सब ठीक है. ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक हैं. इट वॉज क्वाइट लाइट, उजाला हो चुका था. नियरली 5 o'clock, दिन के सुबह के 5 बज रहे थे. ए फ्यू माइनर्स वेर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, कुछ माइन में काम करने वाले वर्कर भी सड़क पे दिख रहे थे. द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, नाइट शिफ्ट के लोग जो है वो वहां से जा रहे थे. एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम, एंड्रयू उनके साथ चलने लगा. स्पेंट एंड स्लो, धीमी गति से. हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई. ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, सुबह के आसमान के नीचे वो चलता जा रहा था उनके साथ और सोच रहा था. ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली, जो और भी ब्लेनली में जो दूसरे काम को उसने किया था, आज जो उसने किया था, और इसी विचार को वो सोच रहा था. आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, हे ईश्वर, मैंने आज कुछ अजीब कर दिया. आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, मैंने कुछ आज वास्तविक किया है. फीलिंग accomplishment, Dr. Andrew handed the child to the nurse as he felt weak and dazed with the room in a complete mess around him. The old woman stood against wall, moving her lips silently. She was praying. Andrew went downstairs and met with Joe and told him that both the mother and the child were okay. Andrew started walking home around 5 o'clock through the streets and thought to himself, I have done something, oh God, I have done something real at last. Thank you very much, dear students, for watching the video presentation.